First of all, wish you a very good morning to all of you. Good morning, everyone. How are you all, guys? Fine? How's the Josh, everyone? How's the Josh? कान में आवाज ही नहीं आ रही है यार. One more time, everyone. Last time पूछ रहा हूँ, उसके बाद नहीं पूछूंगा मैं. कभी नहीं पूछूंगा. How's the Josh? Yeah, hi sir. ठीक है, must be very high. मैं भी ऐसे ही बोलूंगा फिर. चलो ठीक है, so let's get started. शुरू करते हैं. So are you guys really ready? Are you guys really ready? Okay. Ready हो तो शुरू करते हैं फिर. Let's get started. Don't waste your time. Don't waste my time. Without wasting time, let's get started. शुरू करते हैं. तो from the part of general English language मैंने already बात करी थी different topics की. उन different topics के part से मैंने बात करी थी adjective section की. मैंने स्पीच के पार्ट से नाउन सेक्शन फिनिश, प्रोनाउन सेक्शन फिनिश, डिफरेंट कैटेगरीज की बात करी थी, सब कैटेगरीज की बात करी थी, एग्जांपल्स की बात करी थी, एक्सेप्शंस की बात करी थी और एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करी थी. ये सुनो, हर एक कैटेगरी के लाइक पीवाईक्यूज मैंने सॉल्व कराए थे, राइट. और सारे के सारे पीवाईक्यूज कैसे हैं, किस टाइप के हैं, स्पॉटिंग एरर यानी एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं. क्लियर? मोस्ट ऑफ द टाइम. हाँ, क्वेश्चन का फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है. वो फिलर्स के फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछ देगा, वो वर्ड रिप्लेसमेंट के फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछेगा. क्लियर? बट सारे कॉन्सेप्ट्स विल बी सेम के सेम है. ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव सेक्शन. ऑलरेडी मैंने बात करी थी एडजेक्टिव के पार्ट से. इंट्रो ऑफ एडजेक्टिव्स, definition of adjectives, examples of adjectives, types of adjectives, right? अगर मैं पूछूं how many types of adjective have in English language, so the answer of you will be how many types of adjective. कितने types के होते हैं English language में adjectives? दो. कौन कौन से? Which one? Sorry, anyone? How many types of adjective we have on the basis of nature? Two. The first one, attributive. Second one, predicative. What is attributive? What is attributive adjective? Which comes before noun pronoun, right? ऐसा adjective जो noun pronoun के ठीक पहले आती है, attributive होती है. और ऐसी adjectives, that kind of adjective which comes after noun pronoun is all about predicative adjective, right? Already मैंने exceptions भी दिया था. ना exceptions. 20% amount of adjectives ऐसे हैं जो only nature के कैसे हैं, predicative nature के हैं. आएंगे तो नाउन प्रोनाउन के बाद ही, और एग्जाम में क्या आता, नाउन प्रोनाउन के पहले यूज करता और वो एरर होता. कल मैंने एग्जांपल दिखाया था. ऑलराइट, सो हेडिंग टुवर्ड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स ऑफ आर, दैट इज डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव. मैंने ऑलरेडी डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव की बात करी थी. How many degrees of adjective have in English language? 3 degrees. The first one we have positive, second one we have comparative, and the third one we have superlative. Already मैंने तीनों का example दिया था, but फिर भी मैं degrees of adjective से topic को continue करता हूँ. So let's get started. शुरू करते हैं. So we have basically 3 degrees of adjectives. Degrees of adjective, right? We have a 3 degrees of adjective. Adjective की इंग्लिश में 3 डिग्रीज होती है. The first one we have a positive. Focus करना. Don't talk. I'm not allowed to talk you. So first one we have positive. Second one we have comparative. Comparative, right? Degrees. And the third one we have, that is superlative degrees. It's just a superlative degrees. So we have a 3 types of degrees. 3 types की degrees होती है English language में. The first one we have positive. Positive degree क्या है? What is positive degree? Already मैंने कल बताया था, फिर से मैं बता रहा हूँ. Example के थ्रू मैंने explain किया था. Positive degree when no comparison is made ना. Quality क्या है इसकी? No comparison, right? इसमें कोई comparison नहीं होता, degree will be positive. चलेगा. सेकेंड वन, कंपैरेटिव में एज इट्स नेम क्लियर, इसके नाम से ही क्लियर है, कंपैरिजन तो होगा. कंपैरेटिव नाम ही है तो कंपैरिजन तो होगा, बिना कंपैरिजन के डिग्री होगी ही नहीं. कंपैरेटिव नाम में ही क्लियर है, कंपैरिजन तो होगा, बट काउंटिंग कितनी होगी? 2. जब भी 2 एंटाइटीज, 2 ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन होगा, 2 पर्सन, 2 थिंग्स, 2 एंटाइटीज, 2 ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन होगा, डिग्री विल बी कंपैरेटिव. क्लियर? काउंटिंग कितनी? कंपैरिजन बिटवीन 2 ना, कंपैरिजन between 2.
जब भी दो एंटाइटीज, दो पर्सन या फिर दो थिंग्स के बीच में कंपैरिजन होगा, डिग्री विल बी कंपैरेटिव. क्लियर? कंपैरिजन बिटवीन टू. एंड द थर्ड वन दैट इज सुपरलेटिव. इट शोज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी. ये हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं. हेलो, पॉजिटिव से ज्यादा क्या है? कंपैरेटिव. कंपैरेटिव से ज्यादा क्या है? सुपरलेटिव. इससे ज्यादा क्या है? कुछ भी नहीं. It shows, यानी superlative degree shows the highest degree of quality. It represents the highest degree of, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, ये सबसे highest degree of quality को represent करती है. Clear? And the very superlative means, hello, superlative में भी comparison तो होगा, but counting कितनी होगी? Among more than two. Clear? दो से ज्यादा के बीच में comparison होगा among, जब भी दो से ज्यादा के बीच में among more than two ना, जब भी दो से ज्यादा पर्सन या फिर थिंग्स के बीच में कंपैरिजन होगा, डिग्री कौन सी होगी? या वन वर्सेस ऑल. हेलो, जब एक का सबसे कंपैरिजन होगा, डिग्री विल बी सुपरलेटिव. जब वन वर्सेस ऑल, मेरा कंपैरिजन तुम सबसे हो रहा, तो वन वर्सेस ऑल हो रहा, डिग्री कौन सी आएगी? सुपरलेटिव. मैं बोलूंगा आई एम द बेस्ट, तो मैं बेस्ट किससे हूं? तुम सब में से ना बेस्ट हूं. हेलो, मैं बोलूंगा आई एम द बेस्ट. हर्ट मत हो ना, बस बता रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं. आई एम द बेस्ट, तो मैं तुम सब में से बेस्ट हूं ना, तो मेरा वन वर्सेस ऑल हो रहा कंपैरिजन, यानी दो से ज्यादा के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, डिग्री कौन सी आएगी? सुपरलेटिव. तो गुड क्या है? पॉजिटिव. बेटर क्या है? कंपैरेटिव. एंड बेस्ट क्या है? विल बी अ सुपरलेटिव. पॉइंट क्लियर? आई एम बेटर देन यू, तो मैं तुमसे क्या हूं? बेटर हूं. कंपैरिजन कितना हो रहा है? दो के बीच में, डिग्री कौन सी आएगी? बेटर. कंपैरेटिव. एम आई क्लियर? मैं इन तीनों एग्जाम्पल्स, तीनों डिग्रीज को मैंने विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एक्सप्लेन करा था कल. करा था क्या? फिर से कर दूं क्या? फिर से कर दूं? चलो ठीक है. डिग्री समझ में आई? पॉजिटिव में नो कंपैरिजन, कंपैरेटिव में कंपैरिजन तो होगा, बट काउंटिंग कितनी होगी? ओनली टू. जब भी दो से ज्यादा के बीच में कंपैरिजन होगा, डिग्री विल बी सुपरलेटिव. या वन वर्सेस ऑल, वन वर्सेस ऑल, डिग्री विल बी सुपरलेटिव. इजी है. आ जाओ एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं. कल वाला सेम एग्जाम्पल हो गया? डन. कल वाला सेम एग्जाम्पल दे रहा हूं. कल वाला एग्जाम्पल क्या था? ऑरेंज वाला था. क्या था? दिस इज सॉरी, दिस ऑरेंज इज स्वीट. दिस ऑरेंज इज स्वीट. ऑरेंज इज स्वीट. बहुत इजी है, लैंग्वेज बहुत आसान होती है. दिस सेकेंड एग्जाम्पल वी हैव, दिस ऑरेंज is sweeter than that orange, right? Than that orange. Sweeter than that orange. Than that orange. इसमें ये बताओ, फर्स्ट वन में कोई कंपैरिजन हो रहा है क्या? दिस ऑरेंज इज स्वीट. इसमें नो कंपैरिजन इज मेड, कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा. क्लियर? इसमें बस किसी चीज की, यानी ऑरेंज की सिंपल सी क्वालिटी को एक्सप्रेस की जा रही है. एम आई क्लियर? ऑरेंज की क्वालिटी क्या है? दिस ऑरेंज की क्वालिटी क्या है? कि वो स्वीट है. दैट्स इट. इसमें किसी भी चीज की, यानी पॉजिटिव डिग्री में फर्स्ट पॉइंट, कोई कंपैरिजन नहीं होता. When no comparison is made in a positive degree, this is the very first quality of positive degree. No comparison is made. कोई कंपैरिजन नहीं होता, किसी का किसी चीज से कोई भी कंपैरिजन नहीं होता. क्लियर? ऐसी कोई भी डिग्री जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता, डिग्री विल बी पॉजिटिव. क्लियर? सेकंड क्वालिटी, इसमें भी पॉजिटिव डिग्री ऐसी डिग्री है ना जिसमें किसी चीज की, किसी पर्सन या फिर किसी थिंग्स की, किसी एंटाइटीज की सिंपल सी क्वालिटी को एक्सप्रेस किया जाता. क्लियर? यहां ऑरेंज की, दिस ऑरेंज की सिंपल सी क्वालिटी क्या है? कि वो स्वीट है. क्वालिटी मींस एडजेक्टिव. क्लियर? दिस इज द वेरी सेकंड क्वालिटी. एंड द वेरी थर्ड क्वालिटी, पॉजिटिव डिग्री में ना जो एडजेक्टिव है वो अपने नेचुरल फॉर्म में ही रहता है, अपने को कोई चेंज नहीं करता. मैंने स्वीटर करा इसमें? नहीं करा. मैंने स्वीटेस्ट करा? नहीं करा. स्वीट क्या है? अपने नेचुरल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं? तो ऐसे एडजेक्टिव जो अपने क्या होती है? नेचुरल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. नेचुरल फॉर्म, डिग्री कौन सी होगी? will be positive. First quality, no comparison is made. Second quality, किसी चीज की सिंपल सी क्वालिटी को एक्सप्रेस करती है. थर्ड क्वालिटी ऑफ पॉजिटिव, पॉजिटिव डिग्री अपने नेचुरल फॉर्म में एग्जिस्ट करता. पॉजिटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव है वो अपने नेचुरल फॉर्म में ही रहता है. एम आई क्लियर? स्वीट है तो स्वीट ही है ना, स्वीटर थोड़ी करा मैंने, मोर स्वीट थोड़ी करा मैंने. दैट्स व्हाई फर्स्ट क्वालिटी ऑफ पॉजिटिव डिग्री विल बी
नो कंपैरिजन। सेकंड क्वालिटी, किसी चीज की सिंपल सी क्वालिटी को एक्सप्रेस करता, पॉजिटिव डिग्री। एंड थर्ड वन, पॉजिटिव डिग्री में ना जो एडजेक्टिव है वो अपने नेचुरल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यस और नो? थर्ड क्वालिटी क्लियर? यस और नो? देखो पॉइंट नंबर 1, पॉजिटिव डिग्री, पॉइंट नंबर 1, heading will be positive degree, point number 1. Positive degree is when no comparison is made. Positive degree is when no comparison is made. First quality of positive degree will be, positive degree is when no comparison is made. Clear? This is the very first point of positive degree. Second quality of positive degree will be, लिखो second quality. First point लिख लिया, क्या था? Positive degree is when no comparison is made. यानी positive degree में कोई comparison नहीं होता। Am I clear? यहाँ पे इस sentence में किसी का किसी चीज से कोई comparison नहीं हो रहा। Clear? Second point of positive degree. In a positive degree, comma, adjective will be in its natural form. In a positive degree, adjective will be in its natural form. Positive degree, in a positive degree, adjective will be in its natural form. Clear? And the very third quality of positive degree will be, it tells, देखो next point will be, third point, it tells the simple quality of a person or things. It tells the simple quality of a person or things. That's it. Example तुम्हारा ये रहा, लिख लो this orange is sweet. Example लिख लो, उसके नीचे example लिखो this orange is sweet. चलेगा? This is all about positive degree. चलेगा? Heading towards the next point, that is comparative degree. Next heading of your will be comparative degree. Next heading of your will be comparative degree. Hello, पहले आओ, let's comprehend the exact meaning of this comparative degree. Be focused. एक sentence given है, पहले लिखना नहीं है, पहले समझना है, लिखवाऊंगा मैं बाद में, don't worry. यहाँ पे बताऊं, this question क्या है, this orange is sweeter than that orange ना, यहाँ पे किसी का किसी से कोई कंपैरिजन हो रहा है? यस, किसका किसी हो रहा है? दिस ऑरेंज का दैट ऑरेंज से क्या हो रहा? कंपैरिजन हो रहा है कि नहीं हो रहा? दिस ऑरेंज का दैट, यानी इस ऑरेंज का उस ऑरेंज से क्या हो रहा? कंपैरिजन हो रहा। कंपैरिजन काउंटिंग कितनी है? दो के बीच में हो रहा। जब भी दो के बीच में कंपैरिजन होगा, डिग्री विल बी कंपैरेटिव। क्लियर? जब भी कंपैरिजन तो होगा बट काउंटिंग कितनी होगी? 2। दो के बीच में जब भी कंपैरिजन होगा, डिग्री विल बी कंपैरेटिव। यहां पे दिस ऑरेंज का दैट ऑरेंज से क्या हो रहा? कंपैरिजन हो रहा। क्लियर? डिग्री कौन सी आएगी? कंपैरेटिव आएगी। और कंपैरेटिव स्वीट का कंपैरेटिव क्या होगा? इट विल बी स्वीटर। ईआर लगाते हैं, इट विल बिकम अ स्वीटर। कंपैरेटिव। क्लियर? स्वीट विल बी पॉजिटिव, स्वीटर विल बी कंपैरेटिव। डिग्री कौन सी है? कंपैरेटिव डिग्री है। क्लियर? फर्स्ट क्वालिटी का ऑफ कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरिजन तो होगा बट काउंटिंग कितनी होगी? 2। सेकंड क्वालिटी, कंपैरेटिव डिग्री ऑलवेज टेक्स देन आफ्टर देम। जहां जहां भी तुम्हें कंपैरेटिव डिग्री दिखी, इट विल ऑलवेज टेक्स देन आफ्टर देम। अपने बाद हमेशा देन को कंटेन करेगी। कंपैरेटिव डिग्री अपने बाद देन को लेके ही आती है एनी हाउ। क्लियर? दिस इज वेरी सेकंड क्वालिटी ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। फर्स्ट क्वालिटी, कंपैरिजन तो होगा बट काउंटिंग कितनी होगी? यहां जहां कंपैरेटिव डिग्री आएगी, इट विल ऑलवेज टेक्स देन आफ्टर देम। अपने बाद हमेशा देन को कंटेन करती है। क्लियर? ये रूल है इंग्लिश लैंग्वेज का। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज यूज्ड टू शो द कंपैरिजन। इट इज यूज्ड टू शो द कंपैरिजन। इट इज यूज्ड टू शो, दिखाने के लिए, टू शो द कंपैरिजन between two persons or things. It is used to show the comparison between two persons or things. Clear? किसी भी दो पर्सन या फिर थिंग्स के बीच में कंपैरिजन शो करने के लिए बेसिकली ना कंपैरेटिव डिग्री आती है। क्लियर? दो पर्सन या फिर थिंग्स के बीच में कंपैरिजन शो करना। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट,
comparative degree always takes then should be underlined. Comparative degree always takes then should be underlined. then को underline करो. Comparative degree always takes then after them. Comparative degree हमेशा अपने बाद then को contain करती है. Clear? लेके ही आती है anyhow. This is a very second quality of comparative degree. Clear? यहां फोकस करो. यहां पे क्या हो रहा? कंपैरिजन हो रहा है क्या? दिस ऑरेंज क्या किससे हो रहा? दैट ऑरेंज से. फर्स्ट पॉइंट क्लियर. जब भी दो के काउंटिंग कितनी है, दो के बीच में कंपैरिजन होगा, डिग्री कौन सी आएगी? कंपैरेटिव. स्वीटर क्या है तुम्हारा? कंपैरेटिव है. क्लियर? यस और नो? और यहां जहां कंपैरेटिव डिग्री होगी, इट विल ऑलवेज टेक्स देन आफ्टर देम. क्लियर? एग्जाम्पल लिख लो. दिस ऑरेंज इज स्वीटर देन दैट ऑरेंज. नाउ हेडिंग टुवर्ड्स, हाँ एक और पॉइंट छूट रहा था. हेलो, लिख लिया? इसी में एग्जाम्पल लिख लिया ये कंपैरेटिव का. इसी में एक और पॉइंट है, एडिशनल पॉइंट है, कंपैरेटिव का ही है. फोकस करना. पहले मैं तुम्हें हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूं. फोकस करना. ये बताओ, स्वीट से ज्यादा क्या है? स्वेटर. कम ऑन. स्वीट क्या है? पॉजिटिव है. स्वीटर क्या है? कंपैरेटिव है. पॉजिटिव से थोड़ा सा ज्यादा क्या है? कंपैरेटिव. यस और नो? पॉजिटिव से थोड़ा सा एडिशनल क्वालिटी को शो करता है ना. कंपेयर टू पॉजिटिव, कंपैरेटिव थोड़ा एडिशनल क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, शो करता है, थोड़ा सा ज्यादा क्वालिटी को शो करता है कंपेयर टू पॉजिटिव. एम आई क्लियर? वही पॉइंट इंग्लिश में लिखवा रहा हूं. एक पॉइंट है, लिख लो. कंपैरेटिव डिग्री शोज द हायर, कंपैरेटिव डिग्री शोज द हायर क्वालिटी देन द पॉजिटिव डिग्री. कंपैरेटिव डिग्री शोज द हायर क्वालिटी देन द पॉजिटिव डिग्री. Comparative degree shows the higher quality than the positive degree. Clear? Example तुम्हारे सामने है. Comparative clear? Now heading towards the very third one, and that is superlative degree. So next one we have superlative degree. Hello, example क्या था? बहुत easy था. Example क्या था? This orange is the sweetest of all. Is the sweetest of all. यही था ना? This is the actual very example of yours, right? This orange is the sweetest of all. अभी इसको लिखना नहीं है, लिखना है बाद में, जब मैं बताऊंगा तब लिखना है. क्लियर? अभी नहीं लिखना, एडवांस लिख लिया, ऐसे नहीं होता. सुनो, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? अच्छा, स्वीट से ज्यादा क्या है? स्वीटर से ज्यादा क्या है? पॉइंट क्लियर? यानी इट शोज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी. ये हमेशा हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी को रिप्रेजेंट करती है. क्लियर? इससे ज्यादा कुछ नहीं. स्वीट से ज्यादा स्वीटर, स्वीटर से ज्यादा स्वीटेस्ट, इससे ज्यादा क्या? कुछ भी नहीं. नॉट एट ऑल, नथिंग. क्लियर? बी फोकस्ड. स्वीटेस्ट तुम्हारा सुपरलेटिव. अब सुनो, सुपरलेटिव में भी कंपैरिजन तो होगा. हेलो, पॉजिटिव में नो कंपैरिजन, कंपैरेटिव में कंपैरिजन होगा बट बिटवीन टू. सुपरलेटिव में भी कंपैरिजन होगा बट मोर देन टू. दो से ज्यादा पर्सन जब थिंग्स में जब भी कंपैरिजन होगा विल टेक सुपरलेटिव डिग्री. क्लियर? या फिर वन वर्सेस ऑल के बीच में जब भी कंपैरिजन होगा, डिग्री विल बी सुपरलेटिव. पॉइंट क्लियर? यस और नो? यस और नो? ऑलराइट, लिखो पॉइंट नंबर 1. It shows the highest degree of quality. It shows the highest degree of quality. It shows the highest degree of quality. Point number 1 clear? Point number 2. It is used to show the comparison. It is used to show the comparison. It is used to show the comparison. ये यूज होता है शो करने के लिए कंपैरिजन. हेलो, अमंग मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स. इट इज यूज्ड टू शो द कंपैरिजन अमंग मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स. ये दो पर्सन या फिर थिंग्स से ज्यादा में से कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है. क्लियर? सेकंड पॉइंट क्लियर? क्लियर? थर्ड पॉइंट, जहां जहां तुम्हें सुपरलेटिव डिग्री दिखेगी. हेलो, कंपैरेटिव अपने बाद क्या लेके आती थी? देन. सुपरलेटिव अपने पहले क्या लेके आती है? दी.
जहां जहां तुम्हें सुपरलेटिव डिग्री दिखेगी इट विल ऑलवेज टेक्स दी बिफोर इट. लिखो सुपरलेटिव डिग्री ऑलवेज टेक्स दी बिफोर इट. सुपरलेटिव डिग्री ऑलवेज टेक्स दी बिफोर इट. हमेशा अपने पहले दी को कंटेन करती है. क्लियर? हेलो आई एम बेस्ट. हेलो गुड क्या है? एडजेक्टिव है. डिग्री कौन सी है? पॉजिटिव. हेलो बेटर क्या है? कंपैरेटिव. गुड से ज्यादा क्या है? बेटर. बेटर से ज्यादा क्या है? बेस्ट. बेस्ट से ज्यादा क्या है? कुछ भी नहीं. बेस्ट शोज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी. दैट मींस बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव. बेटर क्या है? कंपैरेटिव. गुड क्या है? पॉजिटिव. राइट? रिच क्या है? किसी की क्वालिटी है ना? क्वालिटी मींस एडजेक्टिव. किसी की क्वालिटी है ना कि वो रिच है, क्वालिटी है ना, क्वालिटी मींस एडजेक्टिव. रिच क्या है? नो कंपैरिजन. पॉजिटिव. रिचर क्या हुआ? कंपैरेटिव. बिटवीन टू. comparison between two. Richest will be a superlative degree. It shows the highest degree of quality. Clear? Rich will be everyone. Rich will be everyone. Rich will be richer will be comparative, and richest will be high will be positive. Higher will be comparative. Highest will be superlative. Point clear? बोल नहीं पा रहे हो क्या? बोलो यार. Poor will be पुअर क्या है? पॉजिटिव. बोलो पुअर पॉजिटिव है. क्वालिटी है ना किसी की कि वो पुअर है. पुअर विल बी पॉजिटिव. पुअर विल बी कंपैरेटिव एंड पुअरेस्ट विल बी सुपरलेटिव. क्लियर? मैं बस ये बोल रहा हूं. मैं बोलूंगा आई एम द बेस्ट. द बेस्ट की आई एम बेस्ट. आई एम द बेस्ट ना. हेलो ग्रेट विल बी ग्रेट विल बी ग्रेटर विल बी ग्रेटेस्ट विल बी. हेलो आई एम द ग्रेटेस्ट. आई एम ग्रेटेस्ट. आई एम दी ग्रेटेस्ट ना. पॉइंट क्लियर? एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, लिख लो. हेलो दिस ऑरेंज का किससे हो रहा कंपैरिजन? वन वर्सेस ऑल. ऑल से हो रहा. डिग्री कौन सी आनी चाहिए? सुपरलेटिव. स्वीटेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है. अपने पहले दी को कंटेन कर रही है कि नहीं कर रही है? डेफिनेटली कर रही है. इजी है. डिग्री समझ में आई? ठीक है, इतना हो गया. डन. नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट कैटेगरी. Hello, on the basis of nature, we have two types of adjective, attributive and predicative. Already I have told you very clearly, right? बताया था मैंने. Nature के basis पे adjective has a two types. But on the basis of form, hello, on the basis of nature नहीं, on the basis of form बात कर रहा हूँ. Form के basis पे, दिखने के basis पे, we have a two types of adjective. The first one we have one syllable kind of adjective. Second one we have more than one syllable kind of adjective. हेलो एक टर्म है ब्यूटीफुल वर्ड. सुना है कभी लाइफ में? कभी सुना है ब्यूटीफुल वर्ड? तुम ब्यूटीफुल हो ना? आर यू ब्यूटीफुल और हैंडसम? ब्यूटीफुल नहीं हो. क्यों? क्योंकि ब्यूटीफुल फीमेल के लिए यूज करते हैं ना, मेल के लिए हैंडसम वर्ड यूज करते हैं ना. ऑफ कोर्स, राइट? यस. कभी लेकिन ऐसे कुछ मेल भी होते हैं जो ब्यूटीफुल होते हैं. ठीक ठाक ठीक ठाक ठीक ठाक. राइट? सुना होगा मिस्टर ब्यूटीफुल. एक्चुअली एक्सेप्शंस होते हैं. ठीक है. द पॉइंट इज, मैं क्या बोल रहा हूं, ब्यूटीफुल कभी वर्ड. ये क्या है? स्पीच का कौन सा पार्ट है? वर्ब है क्या? नाउन है क्या? प्रोनाउन है क्या? हाँ, ये तो एडजेक्टिव है. किसी की क्वालिटी है ना. अरे क्वालिटी मींस एडजेक्टिव. एडजेक्टिव मींस क्वालिटी. किसी चीज की क्वालिटी होगी ना, किसी बंदे या किसी बंदी की क्वालिटी होगी ना कि वो ब्यूटीफुल है. राइट? तो क्वालिटी मींस ब्यूटीफुल क्या है? एक एडजेक्टिव है यानी क्वालिटी है. क्लियर? हेलो डिग्री कौन सी है? ये ब्यूटीफुल है तो इसकी क्वालिटी है ना कि ब्यूटीफुल. कोई कंपैरिजन हो रहा है क्या यहां पे? मेरा इससे कंपैरिजन हो रहा है क्या कि मैं भी नहीं मैं भी ब्यूटीफुल हूं? ऐसा थोड़ी होता. राइट? कंपैरिजन नहीं हो रहा. मैं बोल रहा हूं तुम ब्यूटीफुल हो तो क्या है? कंपैरिजन एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट है. ये किसी चीज की बस सिंपल सी क्वालिटी को एक्सप्रेस कर रहा. ब्यूटीफुल डिग्री कौन सी है? पॉजिटिव. कंपैरेटिव क्या होगा? ब्यूटीफुलर. और सुपरलेटिव क्या होगा? ब्यूटीफुलेस्ट. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होता. पॉजिटिव में तो सब सेम है, और जब भी मैं कंपैरेटिव करूंगा ना तो मोर ब्यूटीफुल एंड सुपरलेटिव विल बी मोस्ट ब्यूटीफुल. टॉल क्या है? किसी क्वालिटी है ना. टॉल क्या है? पॉजिटिव है. कंपैरेटिव क्या होगा? मोर टॉल ना, टॉलर होगा. सुपरलेटिव क्या होगा? टॉलेस्ट होगा. मोस्ट टॉलेस्ट नहीं होगा. क्लियर? ऑनेस्ट वर्ड क्या है? क्वालिटी है ना किसी की. ऑनेस्ट विल बी पॉजिटिव. कंपैरेटिव विल बी ऑनेस्टर.
more honest. Superlative will be honestest. ये क्या होता? Most honest. Clear? ये बताओ, जब मैं कुछ कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिनको मैं पॉजिटिव में तो सारे सेम है, पॉजिटिव में तो सारे सेम है, पॉजिटिव में तो कोई चेंज है ही नहीं, बट जब भी मैं कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव में चेंज कर रहा हूं ना, कुछ मैं मोर एंड मोस्ट यूज कर रहा हूं और कुछ में ईआर एंड ईएसटी यूज कर रहा हूं. क्यों? रीजन क्या है? क्यों मैं हर एक टाइप ऑफ एडजेक्टिव में ईआर एंड ईएसटी यूज नहीं कर रहा हूं, मोर एंड मोस्ट यूज नहीं कर रहा हूं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स में कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव में क्यों हो रहा है ऐसा? रीजन क्या है? समझ में आया? मेरा क्वेश्चन क्लियर हुआ? इसके लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा. एडजेक्टिव हैज अ टू टाइप्स, वन syllable एंड मोर देन वन syllable. क्लियर? पढ़ाओ, आ जाओ. वी हैव टू टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नहीं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स. दिखना ठीक है ना? फॉर्म्स. वी हैव टू टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, क्लियर? We have two types of adjective on the basis of forms. दिखने के basis पे. The first one we have one syllable. कभी सुना है one syllable? Syllabus नहीं, syllable. 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 Syllable means syllabi. बोलना, syllabi करना. Right? And second one we have more than one syllable. कभी सुना है लाइफ में? More than one syllable. एक syllable से ज्यादा. Clear? We have two types of adjective on the basis of forms. The first one we have one syllable. Second one we have more than one syllable. Hello, one syllable क्या होती है? ऐसा सुनो, मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ. ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत पढ़ो. बुक्स में जाओगे बहुत कुछ में कॉम्प्लिकेट करेगा. और किसी भी टीचर, किसी भी फैकल्टी, किसी भी मेंटर का काम क्या होता है? बुक्स में लिखी हुई इन्फॉर्मेशन को इस वे में रिप्रेजेंट करना. दिस इज द एक्चुअल टास्क ऑफ अ टीचर. मेंटर का कोई अलग से काम. इन्फॉर्मेशन वो आउट ऑफ हेवन से लेके नहीं आते, स्वर्ग से लेके नहीं आते पूरा. हाँ, मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया है, अब मैं एक एक करके दूंगा, ऐसा नहीं होता. बुक्स में सारी चीजें, सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन्ड है. बुक्स की लिखी हुई चीजों को इजी वे में एक्सप्लेन करना, रिप्रेजेंट करना, यही टास्क होता है किसी भी टीचर, फैकल्टी या फिर मेंटर का. क्लियर? ये सुनो, बुक्स पढ़ने में कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं. दैट्स व्हाई किसी भी टीचर का काम होता है कि उसी चीज को इजी वे में एक्सप्लेन करना. समझ में आ रहा? तो बुक्स में जाओगे ना बेसिकली तो मैं बहुत कॉम्प्लिकेट करेगा सेम टॉपिक. अगर मैं तुम्हें ईज वर्ड में एक्सप्लेन करूँ ना, तो क्या हो, ऐसा कोई भी क्वालिटी, ऐसी कोई भी एडजेक्टिव जिसको तुम फटाक से मुंह से बोल देते हो, बिना रुके, विदाउट एनी शटल पॉज, बिना किसी रुके हुए, बिना किसी पॉज के तुम फटाक से मुंह से बोल देते हो. बोलो टॉल, बोलो टॉल. कहीं रुक रहे हो क्या हल्का सा? नहीं ना, पॉज नहीं. टॉल, स्मॉल, रिच, पुअर. क्लियर? कहीं भी रुक नहीं रहे हो. बट अब बोलो ऑनेस्ट. बोलो ऑनेस्ट, ऐसे बोलो ऑनेस्ट. ऑनेस्ट क्या होता है? ऑनेस्ट. एक से ज्यादा सिलेबाई है ना, और एक नेस्ट सेकंड सिलेबाई. मोर देन वन है ना, तभी मैं मोर देन वन इसको बोलते हैं. बोलो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, थ्री सिलेबाई. ब्यूटीफुल. रुक रहे हो ना, ऐसे बोलते हो ना, यू आर वेरी ब्यूटीफुल बोलते हो ना, कि ऐसे बोलते हो यू आर वेरी ब्यूटीफुल, हैंडसम. ये क्या होता है? इंटेलिजेंट, फोर सिलेबाई. थोड़ा रुक के बोलते हो ना, यू आर वेरी इंटेलिजेंट बोलते हो ना, ऐसे बोलते हो यू आर वेरी, ऐसे थोड़ी बोलते हो. बेसिकली कहने का सेंस क्या है यहाँ पे, कि इंटेलिजेंट यानी एक से ज्यादा सिलेबाई आ रहा, दैट विल बी मोर देन वन syllable. वन syllable, मोर देन वन syllable. क्लियर? तो ऐसी कोई भी एडजेक्टिव जो वन syllable है, उसको तुम कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव में ईआर एंड ईएसटी यूज करते हो. पॉजिटिव में तो सेम है, कंपैरेटिव में जब तुम चेंज करोगे ना, ईआर लगाओगे, एंड सुपरलेटिव में ईएसटी लगाते हो. क्लियर? एक टर्म बोल रहा हूं, मैंने बोला स्मॉल. स्मॉल किसी की क्वालिटी है ना, स्मॉल. बोल के देखो स्मॉल. एक बार में वन syllable में बोल रहे हो. कंपैरेटिव क्या होगा? ईआर, स्मॉलर. सुपरलेटिव विल बी ईएसटी, स्मॉलेस्ट. क्लियर? बट जब भी मोर देन वन syllable बोलोगे, फैथफुल बोलते हो ना, फैथफुल, थ्री syllabi. दैट्स व्हाई कंपैरेटिव क्या होगा? मोर फैथफुल. सुपरलेटिव विल बी मोस्ट फैथफुल. पॉइंट क्लियर? इजी है. वन syllable, मोर देन वन syllable. यस और नो? यस और नो? वी हैव अ पॉजिटिव
comparative, and the last one we have superlative. चलेगा ना? Positive, comparative and superlative. इसका भी we have a 3 categories: positive, comparative, and the last one we have superlative. चलेगा? Hello, example दो मेरे को 1 syllable का. Small will be positive. Smaller will be. अरे स्मॉलर है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने. स्मॉलर लिख, तुम्हें लिखना पड़ेगा, ईयर नहीं लगाना पड़ेगा. स्मॉलर पूरा लिखना पड़ेगा, तुम लिख लेना. एंड स्मॉलेस्ट विल बी स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट. ठीक है, क्योंकि 1 syllable है. टॉल, टॉलर, टॉलर एंड टॉलेस्ट. पॉइंट समझ में आ रहा? मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूं, तुम्हें समझा रहा हूं, एक रेफरेंस दे रहा हूं, पूरा लिख नहीं रहा हूं डिटेल में. क्लियर? और बताओ. 1 syllable, 1 syllable, 1 syllable, 1 syllable. सॉरी, एक लोग बोलो ना, समझ नहीं आ रहा. बिग, बिग, एग्जैक्टली, बिग. बिग विल बी पॉजिटिव. हेलो, बिगर विल बी, बिगर विल बी. अरे बोलो यार. बिगर विल बी एंड बिगेस्ट विल बी. इजी है ना? 1 syllable. ऑन द अदर हैंड, contrary, on the other hand, more than 1 syllable. Example, give me the basic example of more than 1 syllable. Come on. Intelligent. ये भी क्वालिटी है ना किसी की. विल बी पॉजिटिव है ना? पॉजिटिव में तो सारे सेम होते हैं, बट कंपैरेटिव विल बी मोर इंटेलिजेंट. सुपरलेटिव विल बी मोस्ट इंटेलिजेंट. क्लियर? ऑनेस्ट, नेक्स्ट वर्ड वी हैव ऑनेस्ट. ऑनेस्ट विल बी पॉजिटिव. मोर ऑनेस्ट विल बी कंपैरेटिव एंड मोस्ट ऑनेस्ट विल बी सुपरलेटिव. राइट? नेक्स्ट वर्ड वी हैव faithful. FAITH FUL. Faithful will be positive. More faithful will be comparative and most faithful will be superlative. Easy है ना? 1 syllable, more than 1 syllable. Point clear? Got the picture everyone? समझ में आया? Note it down. नोट करो फटाक से. बहुत सारी चीजें पढ़नी है, जल्दी फास्ट. अभी एक मेरे को स्टार्ट करना है, लाइक कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स, वो भी पढ़ना है. आज ही फिनिश करना है मेरे को. जल्दी करो, थोड़ा सा फास्ट करो. इतने पॉइंट समझ में आ रहे हैं? इजी है? चलो ठीक है. सो हो गया? लिख लिया पूरा? चेंज कर दूं? Be focused. So the next category of adjective will be confusing adjectives. Confusing, and this is the most crucial topic. Confusing adjectives. Hello, confusing noun पढ़ा था? Noun के part में, from the part of noun already तुमने एक term, एक concept पढ़ा था, that is एक category पढ़ी थी, that is confusing nouns. As it is from the part of adjective के context में तुम्हें एक topic पढ़ना है, that is confusing adjectives. Right? Hello, we have 3 types of adjective. The first one we have positive. Yes or no? Second one we have comparative. Comparative नहीं बोलते, comparative बोलते हैं. Comparative क्या होता है? It's just a comparative. बोल के दिखाओ. Everyone. One more time, everyone. Comparative, right? Comparative मत बोलना. Comparative. And the last one we have सुपर. सुपर नहीं, सुपर नहीं, सुपर. सुपर क्या होता है? सुपर, सुपर क्या होता? दैट इज सुपरलेटिव. अरे शू, स नहीं, शू, सुपरलेटिव, सुपरलेटिव. हाँ, नहीं तो ये भी सिखाना पड़ता है. छोटे बच्चे हो क्या? हाँ. ऑलराइट. Be focused. We have 3 types of adjective of degrees of adjective. The first one we have positive, comparative and superlative. बहुत सारे ऐसे confusing adjectives होते हैं इंग्लिश में जिनका पॉजिटिव तो सेम ही होगा. पॉजिटिव में तो सारे सेम है ना, बट जब भी मैं कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव में चेंज करता हूँ ना, तो बहुत कंट्रोवर्सीज है, बहुत सारे डिलेमा होता है, और इन्हीं डिलेमा से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं. और तुम्हारे एपीएसबी के एग्जाम में ना भर भर के आता है यहाँ से कैटेगरी, इस कैटेगरी से क्वेश्चन आता ही आता है. अगर किसी ने भी एपीएसबी एग्जाम दिया होगा तो 10 हर बार देख लो, फाइनली इसकी जो रेशियो है इस कैटेगरी से क्वेश्चन आता ही आता है. अब जो मैं पढ़ा रहा हूं इसको बहुत ही फोर्सफुली पढ़ना, फोकस से पढ़ना, और एल्स बहुत सारे टीचर्स तुम्हें पढ़ा ही नहीं पाएंगे इसको. मार्क माय वर्ड. मैंने देखा है बहुत सारे टीचर्स तुम्हारे अरुणाचल से ही ले लो, इतना गंदा पढ़ाते हैं ना लिटरली कि उनको पता ही नहीं है कि पढ़ाना कैसे है. मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इस टॉपिक को पढ़ना है कैसे. क्लियर? बी फोकस्ड. इस कैटेगरी का नाम है कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स. पॉइंट क्लियर? डिग्रीज को चेंज करना सिखाएगा. क्लियर? द फर्स्ट कैटेगरी वी हैव दैट इज पॉजिटिव, सेकंड वन वी हैव कंपैरेटिव, एंड द थर्ड वन वी हैव सुपरलेटिव. राइट?
सो द वेरी फर्स्ट वर्ड वी हैव, कभी तुमने एक वर्ड सुना है, कौन सा वर्ड? ओल्ड वर्ड सुना है क्या? ओल्ड क्या ऐसा किसी की क्वालिटी है ना कि वो बंदा ओल्ड है? ओल्ड विल बी पॉजिटिव एंड द वेरी कंपैरेटिव ऑफ ओल्ड विल बी, क्या सुना? ओल्डर सुना होगा और एल्डर भी होता। क्लियर? ओल्डर एंड एल्डर बोथ कैन बी कंपैरेटिव ऑफ ओल्ड। इजी है? सुनो, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग। इफ ओल्डर विल बी कंपैरेटिव ना, सुपरलेटिव विल बी oldest. Yes or no? Hello? If elder will be comparative na, superlative will be eldest. अब मेरे को ये बताओ दोनों में डिफरेंस क्या है? ओल्ड ओल्डर में, ओल्ड और एल्डर में डिफरेंस क्या है? अब कहोगे ना, जहां तक तुमने पढ़ा हुआ है, तुमने बोलोगे ना सर ओल्ड हमेशा ब्लड रिलेशन के लिए नहीं आता और एल्डर ना हमेशा ब्लड रिलेशन को शो करता। यही बोलोगे ना? जब ये भाइयों के बीच में बात होगी एल्डर लगा देते हैं, जब ये ब्लड रिलेशन की बात होगी एल्डर लगा देना, और जब ये फ्रेंड्स की बात होगी ओल्डर लगा देना। यही बोल रहे हो ना? अरे ये भी पढ़ा है कि ये भी नहीं पढ़ा? कम ऑन मैन। जनरली लोगों का ओवरव्यू क्या होता है? ओल्डर ना हमेशा ब्लड रिलेशन की जब बात ना हो, जब ये फ्रेंड्स की बात हो, फ्रेंड्स कलीग्स की बात हो, तो हम ओल्डर लगाते हैं। और एल्डर ना हमेशा जब ब्लड रिलेशन की बात हो, मतलब जो भाइयों के बीच बात होगी, सिस्टर्स की बात होगी, एल्डर लगाते हैं। क्लियर? बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ऐसा कोई थ्योरी ही नहीं है। तुम्हें गलत पढ़ाया जाता है और तुम गलत पढ़ते आए हो। क्लियर? क्योंकि हमारे स्कूल टीचर ने हमें बहुत गलत पढ़ाया, बहुत ज़्यादा गलत पढ़ाया। ये तो स्पेशली मेरे टीचर ने बहुत गलत पढ़ाया था। तुमने भी पढ़ा था ना गलत? रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इज वेरी डेंजरस, राइट? बी फोकस्ड। जो मैं बता रहा हूँ उस पर फोकस करना। ये कॉन्सेप्ट कोई तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा एक्सेप्ट मी, जस्ट बिकॉज ऑफ आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। यस और नो? Yes or no? Always yes. आ जाओ फोकस करो, आ जाओ फोकस करो। Old will be positive, older and elder both can be comparative. Clear? And देखो अगर comparative older होगा superlative will be oldest, अगर comparative elder होगा superlative will be eldest. अब सुनो डिफरेंस क्या होता है, सुनो। Older ना जब भी तुम्हें दिखेगी older word, एक तुम्हें ट्रिक बताता हूँ, it will always contain than after them. हमेशा अपने बाद than को contain करेगी। जब भी तुम्हें ओल्डर वर्ड दिखा, ओल्डर वर्ड, इसके बाद देन आई हुई है तो ओल्डर चूज कर लेना। यस और नो? एल्डर ना हमेशा अपने बाद टू को कंटेन करता है, टू को। अगर एल्डर के बाद अगर मान लो ऑप्शन दिया हुआ है ओल्डर एल्डर और आगे अगर टू दिया हुआ है तो तुम एल्डर चूज करना, ओल्डर मत करना, क्योंकि ओल्डर ऑलवेज टेक्स देन बट एल्डर ऑलवेज टेक्स टू विद इट। एम आई क्लियर? ये ट्रिक है। अब सुनो डिफरेंस क्या है। ओल्डर ना जो देन लेके आती अपने बाद ना हमेशा पर्सन्स एंड थिंग्स दोनों के लिए आती है। क्लियर? ये मकान इस मकान से ना पुराना है। क्लियर? तो ओल्डर लगाना, एल्डर मत लगाना। क्लियर? क्योंकि मकान क्या है? थिंग्स है ना। ये ना ये छोटा भाई है तो ओल्डर भी लगा सकते हो, ये बड़ा भाई है तो ओल्डर भी लगा सकते हो, एल्डर नहीं लगाने की जरूरत है। यानी कि भाई ब्लड रिलेशन है तो एल्डर लगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर? ये भाई इस भाई से ये जो ब्रदर है इससे बड़ा है तो ओल्डर लगा सकते हो, क्योंकि ओल्डर पर्सन्स के लिए भी आता है। एम आई क्लियर? गॉट द पिक्चर एवरीवन? ऐसा कुछ भी नहीं है ब्लड रिलेशन के लिए एल्डर आता है ना, नो नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। ओल्डर ब्लड रिलेशन के लिए भी आता। अभी बोला ना ओल्डर या तो पर्सन में ब्रदर्स भी आएंगे, सब आएंगे, फ्रेंड्स भी आएंगे, सब आएंगे। एंड ओल्डर ना जो कि देन लेके आती है थिंग्स के लिए भी आती है। पॉइंट क्लियर? ऑन द अदर हैंड एल्डर ना हेलो ओनली जस्ट पर्सन्स के लिए आता, थिंग्स के लिए नहीं आता। एम आई क्लियर? और अपने बाद हमेशा टू को कंटेन करेगा, देन को कंटेन नहीं करता। एम आई क्लियर? दिस इज द एक्चुअल बेसिक डिफरेंस बिटवीन ओल्डर एंड एल्डर। पॉइंट क्लियर? गॉट द पिक्चर? यस। अब समझ जाना, अगर ओल्डर कंपैरेटिव है ओल्डेस्ट विल बी सुपरलेटिव, अगर एल्डर कंपैरेटिव है एल्डेस्ट विल बी सुपरलेटिव। पॉइंट क्लियर? इजी है। अभी मैं तुम्हें बहुत सारे एग्जांपल्स कराने वाला हूँ, क्वेश्चंस कराऊंगा, यू विल गेट टू नो। ठीक है? अभी इतने पॉइंट समझ में आ रहे हैं? चलो ठीक है। सो नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड। कभी तुमने एक और वर्ड सुना है, कभी तुमने फार वर्ड सुना है? फार, हेलो फार है वो चीज, बहुत फार है मेरे से, दूर है, डिस्टेंस। फार क्या होती है? क्वालिटी है ना किसी की। अरे कोई क्वालिटी, फार मीन्स दूर, डिस्टेंस, क्वालिटी है ना। ये भी एडजेक्टिव है, इसको भी लेके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्लियर?
Hello, far can be positive. F-A-R-T-H-E-R, farther can be comparative, and further. Hello, F-U-R-T-H-E-R, further. Both can be comparative of far. Am I clear? Farther and further. एक farther and further. Clear? If comparative will be farther, नहीं farther. If comparative will be farther, superlative will be farthest. Clear? If comparative will be farther, if comparative will be further, superlative will be furthest. What's the actual basic difference between farther and further? दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, farther means it's, यहां लिख दूं मैं, farther shows distance, चलेगा, and further shows additional information. Additional means advance. Hello, समझ में आया? Farther shows distance show करता. farther, ये ना इसके घर से ये बहुत दूर है. अच्छा, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूं. एग्जाम्पल दे दूं. एंड फर्दर शोज डिस्टेंस. अच्छा, ये बताओ, एक एग्जाम्पल लिखो. इतना हो गया तो मैं चेंज करूं स्लाइड थोड़ा सा. हो गया ना? इतना लिख लिया सब कुछ. एग्जाम्पल टाइम. मैंने बोला he went to London for farther or further studies. हेलो, वो लंदन गया. क्यों गया? किस लिए गया? दूर की पढ़ाई करने के लिए कि आगे की एडिशनल एजुकेशन के लिए, या दूर की एजुकेशन के लिए? अरे स्टडीज मतलब पढ़ने के लिए. कहाँ गया? दूर की पढ़ाई करने के लिए गया कि आगे की भी पढ़ाई करने के लिए गया? एडिशनल स्टडीज के लिए ना. दैट्स व्हाई इट विल बी अ फर्दर. फार्दर नहीं. फर्दर शोज डिस्टेंस एंड फर्दर शोज एडिशनल स्टडीज. पॉइंट क्लियर? तो एडिशनल स्टडीज के लिए गया ना लंदन, तो फादर थोड़ी होगा वो दूर की पढ़ाई के लिए लंदन गया. दूर की पढ़ाई के लिए ये क्या होता? इट्स फर्दर स्टडीज. बोलता ना, जस्ट फॉर फर्दर स्टडीज, आगे की पढ़ाई के लिए, एडिशनल स्टडीज के लिए. क्लियर? दैट्स व्हाई इट विल बी अ फर्दर होगा, फादर नहीं होगा. क्लियर? वन मोर एग्जाम्पल. His house is further or farther from here. उसका जो घर है ना, वो यहां से फर्दर है कि फार्दर है? एडिशनल घर है क्या यहां से? ये क्या होता? उसका घर यहां से दूर है ना. इट विल बी फार्दर, नॉट फर्दर. क्लियर? उसका घर यहां से दूर है, डिस्टेंस को शो कर. दैट्स व्हाई इट विल टेक्स अ फार्दर, नॉट फर्दर. क्लियर? इजी है? अरे यहां पे कंपैरिजन हो रहा है ना, उसके घर का यहां से कंपैरिजन हो रहा. डिग्री कौन सी आएगी? कंपैरेटिव कौन सी होगी? फर्दर या फार्दर? फार्दर, नॉट फर्दर. इजी है? चलो ठीक है. ये पॉइंट्स क्लियर, इतने क्लियर हो गए सारे. ये सारे कौन सा हुआ? ओल्ड, फार. क्लियर? नेक्स्ट वर्ड वी हैव, नेक्स्ट एडजेक्टिव वी हैव. कभी तुमने मैनी सुना? मैनी वर्ड. कभी तुमने मच सुना? मच वर्ड. हाँ, पॉजिटिव क्या है? We have 3 columns. The first one we have positive, second one we have comparative, and third one we have superlative, right? मैं कोई चीज बताऊं. मैंने एक टर्म बोला मैंने, मैनी क्या है? किसी क्वालिटी है ना. मच भी क्या है? हेलो, बोथ आर द एग्जांपल्स ऑफ एडजेक्टिव एंड बोथ हैव अ पॉजिटिव डिग्री. मैनी क्या होती है? मैनी मीन्स ज्यादा, मच मीन्स ज्यादा. बोथ हैव द सेम मीनिंग एंड बोथ आर द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव. दोनों एडजेक्टिव्स हैं एंड बोथ हैव द सेम मीनिंग. दोनों की मीनिंग क्या है? सेम है. क्लियर? बट द डिफरेंस इज मैनी मीन्स भी ज्यादा, मच मीन्स भी ज्यादा.
both are the part of adjective, but the difference is many always comes with countable noun, much is always comes with uncountable noun. यही तो है difference आया. Hello, many boys, much boys. Already मैंने ये बता दिया जब मैं noun section पढ़ाया था, तो already बताया था ना. Countable, uncountable. Yes or no? Yes. Many always comes with countable noun, na? Many always comes with countable noun. Much always comes with uncountable noun. But both have the same meaning. Hello, both are the degree of positive. Yes or no? दोनों क्या है? Positive है. तो very comparative क्या होगा? More. दोनों का comparative क्या होगा? More. And both have a superlative degree, that is most and most. दोनों का अलग अलग नहीं होता. Clear? ये भी एग्जाम में आता है, बहुत बार पूछता है. ठीक है, मैं कोई एक चीज बताऊं. मैनी मीन्स क्या होता सर? ज्यादा. मच मीन्स क्या होता सर? ज्यादा. मैनी ऑलवेज काउंट्स विद काउंटेबल नाउन, मच ऑलवेज काउंट्स विद अनकाउंटेबल नाउन. यस और नो? मैनी का जस्ट ऑपोजिट क्या होता? फ्यू. फ्यू मीन्स कम. मच का जस्ट ऑपोजिट क्या होता? लिटिल. क्लियर? Hello, many means zyada, much means zyada. Both have a same meaning, but the difference is many always comes with countable, much always comes with uncountable. Yes or no? Many means zyada. Hello, few means come. Just opposite है ना? But hello, much means zyada, little means come. Just opposite है ना? But the difference is hello, few means become, little means become. But the difference is few is always comes with countable noun. Little always comes with uncountable noun. Yes or no? And all other degree of positive. सबके सब क्या है? Positive है. Clear? Hello, few can be positive. Fewer will be. बोलो यार. Comparative and fewest will be. बोलो. Superlative. अरे बोल लो जैसे बोलना है वैसे बोल लो. By choice. Super, sure, का कोई डिफरेंस नहीं है. आ जाओ. ठीक है ना? Hello, few will be positive, fewer will be comparative, and fewest will be superlative. Little will be positive. Less will be comparative, and lesser. Both can be comparative of little. Hello, less and lesser. Both should be comparative of little. Little means come, will be positive. बहुत सारे लोगों को ये लगता है ना, लेस विल बी पॉजिटिव, लेसर विल बी कंपैरेटिव एंड लीस्ट विल बी सुपरलेटिव. ना, लेस एंड लेसर बोथ आर द एग्जांपल्स ऑफ कंपैरेटिव. क्लियर? लेकिन पॉजिटिव किसका है? कंपैरेटिव. लिटिल का. पॉइंट क्लियर? लिटिल विल बी पॉजिटिव, लेस एंड लेसर बोथ विल बी कंपैरेटिव. एंड इफ कंपैरेटिव विल बी लेस ना, सुपरलेटिव विल बी लीस्ट. If comparative will be lesser ना, superlative will be least ही होगा. और क्या होगा? समझ में आया? पर कहोगे दोनों में डिफरेंस क्या है? कब लेस लगाएंगे, कब लेसर लगाएंगे? यस ना? पूछोगे ना कि मैं ही आंसर करूं, मैं ही पूछूं? सब पूरा कॉन्ट्रैक्ट लिखवा लिया मैंने पूरा. तुम ही आंसर करो, तुम ही बोलो, मैं तो कुछ नहीं, मैं तो ऐसे बैठूंगा. लेकिन कथा सुने होगे यहाँ पे. कथा चल रहा है. कथा नहीं चल रहा ना. मैं पंडित हूं, लेकिन वो वाला पंडित नहीं हूं. पूजा अर्चना वो करने वाला पंडित नहीं हूं मैं. एडवांस पंडित हूं. आ जाओ, फोकस करो. सुनो. लेस विल बी कंपैरेटिव, लेसर विल बी, बोथ आर द एग्जांपल्स ऑफ कंपैरेटिव. लिटिल विल बी पॉजिटिव एंड लीस्ट विल बी सुपरलेटिव. बट द डिफरेंस इज लेस एंड लेसर में डिफरेंस क्या होता? सुनो, एक ट्रिक बताऊं. ट्रिक पहले ट्रिक बताओ तो फिर मीनिंग बताता हूं. मीनिंग बताओ, ट्रिक बताओ. हेलो, लेस and lesser both are the examples of comparative, but जब भी less आएगी ना, it will always takes than after them. ठीक है? जब भी lesser आएगी ना, it will always takes off after them, not than. easy है. जब भी than आएगी, it will always takes, sorry, जब भी less आएगी, it will always takes than after them. जब भी lesser आएगी, it will always takes off after them. easy है. example दूं? example दूं? हो गया इतना? लिखो एग्जाम्पल. ऑफ द टू गर्ल्स, ऐसे कर लो.
दिस इज लेस और लेसर ऑफ द टू इविल्स. इविल्स मीन्स क्या है? बुराइयां. इविल मीन्स क्या होता है? बैड हैबिट्स, डिमेरिट्स ना. हेलो, विच वन यू कैन चूज? दिस इज ऑफ. बाद में क्या आ रही है? ऑफ. हेलो, दो काउंटिंग कितनी है? दो. दो के बीच में क्या हो रहा है? कंपैरिजन ना. डिग्री कौन सी आएगी? कंपैरेटिव ना. लेस भी क्या है? कंपैरेटिव. लेसर भी क्या है? कंपैरेटिव. एम आई क्लियर? जब भी दो के बीच में कंपैरिजन होगा, डिग्री आएगी कंपैरेटिव. लेस एंड लेसर बोथ आर द एग्जांपल्स ऑफ कंपैरेटिव. यस और नो? यस. बट व्हिच वन वी गोना चूज? ऑफ. बाद में चेक करो, ऑफ गिवन है. ऑफ के साथ क्या है? इट विल लेसर ना, नॉट लेस, क्योंकि लेस ऑलवेज टेक्स देन, नॉट ऑफ. पॉइंट क्लियर? गॉट द पिक्चर एवरीवन? यस. वन मोर टाइम एवरीवन. यस और नो? वन मोर टाइम. आज करना है. वन मोर टाइम. यस और नो? मजा आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहा ना? मेरी लेक्चर पे कौन बोर होगा? जो बोर होगा वो किसी लायक नहीं है. आ जाओ, फोकस करो. जो भी थोड़ा भी पढ़ने वाला है वो कभी बोर नहीं होगा. क्लियर? हेलो, कमेंट बॉक्स. कुछ कमेंट है? यस. इनको सिलेबस ही खत्म कर. गुड मॉर्निंग सर, प्लीज गिव योर लेक्चर इन इंग्लिश. अच्छा, हिंदी में बोल रहा हूँ क्या मैं? पूरा इंग्लिश चाहिए क्या? फिर इनको नहीं समझ में आएगा. क्या करूँगा फिर मैं तो बोल सकता हूँ. चलो कोई बात नहीं, पूरा इनको इंग्लिश में चाहिए. देखो देखो, एक होती है इंग्लिश, एक होती है हिंग्लिश. हिंदी प्लस इंग्लिश. तो वो मैं हिंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ. हिंग्लिश इंग्लिश पूरा इंग्लिश में पढ़ाऊंगा ना तो सर के ऊपर से निकल जाएगा. फिर कहोगे टीचर अच्छा नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा. क्लियर? मज़ा आना चाहिए लाइफ में. मज़ा मज़ा मज़े लो. आ जाओ. हेडिंग टुवर्ड्स द वेरी नेक्स्ट वन, दैट इज, मैंने सेम क्वेश्चन को बोला, दिस इज लेस और लेसर than two evils. Which one you gonna choose? Hello, which one you gonna choose? Than and it will always take than, not less. Lesser, less. Clear? Less आएगी, lesser नहीं आएगी. Point clear? चलो ठीक है. Heading towards the very next category. इतना समझ में आ गया था? देखो तुमने लिख लिया ना, many, more, many, much, few, little. Clear हो गया पूरा? Example देख लिया less and lesser का. Next one लिख लो. Next one. नेक्स्ट एडजेक्टिव वी हैव, लिख लो तुम उसका, कौन सा जो बार बार आता है एग्जाम में, लेट का. ये इसको लेके बहुत कॉन्ट्रोडिक्शंस है, बहुत सारे, सबके माइंड में बहुत कॉन्ट्रोडिक्शन होता है, क्योंकि ये हर बार पूछता है लेट. हेलो, लेट विल बी पॉजिटिव. लेट होना ना क्वालिटी है किसी की. लेट विल बी पॉजिटिव. लेटर, LAT या लेटर एंड लैटर, LATTE या लैटर. लेटर एंड लैटर बोथ कैन बी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव विल बी last. Sorry, superlative will be latest, LATEST, latest and last both will be superlative. Point clear? बहुत बार इससे एग्जाम में, तुम्हारी APSS में तो 1000 टाइम क्वेश्चन पूछ चुका है. Be focused. Hello, late will be, everyone, late will be later and latter both should be comparative, and if comparative will be later now, superlative will be latest. If comparative will be later now, superlative will be last. But the difference is later and latter. What's the actual basic difference? और यही difference लेके बहुत सारे लोग confused रहते हैं. आज मैं तुम्हें clarity दूंगा. उस पर्दे से, उस चीज से आज पर्दा उठेगा. आ जाओ, फोकस करो. Hello, late shows timing. Late shows timing, but latter shows sequence. This is the actual basic difference. Point clear? Hello, late. I'll call you later. I'll call you late later. I'll call you later. I'll call you later. बाद में थोड़ी कॉल करूंगा मैं तुम्हें. बाद में टाइमिंग शो करना ना. We're gonna use timing now. It will be later. I'll call you later. Can you just call me later? बोलते ना later. Later थोड़ी बोलते हैं. बट जो बात होगी लेटर की, लेटर सीक्वेंस, इसके बाद ये, इसके बाद ये. समझ में आया? इट शो सीक्वेंस तो लेटर होगा, इसके बाद ये आया लेटर होगा, लेटर नहीं. बट मैं तुम्हें बाद में, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा. बोलते नहीं हो मैं तुमसे बाद में बात करूँ, अभी मैं बहुत बिजी हूँ. बोलते नहीं हो ऐसे? स्पेशली तुम लोग बोलते हो. दैट्स व्हाई उसको बोलते हैं लेटर. लेटर एक टाइमिंग को शो करता हूँ और एक क्या होता है, सीक्वेंस को शो करता है. एग्जाम्पल दूं? मैंने बोला ऑफ द टू गर्ल्स,
of the two girls, one of the two, ऐसे कर लो, of the two girls she came later or later in the class. She came later or later in the class. Which one you gonna choose? दो लड़कियों में से कंपैरिजन कितने हो रहा, काउंटिंग कितनी है? 2. जब भी दो केस में कंपैरिजन होगा, डिग्री कौन सी आएगी? कंपैरेटिव डिग्री. तो यहाँ पे बोथ आर द एग्जांपल्स ऑफ कंपैरेटिव ना. लेटर एंड लेटर बोथ कैन बी कंपैरेटिव. यस और नो? Which one you gonna choose? She, दो गर्ल्स में से ना एक ना क्या आई, बाद में आएगी, टाइमिंग वाला बाद आएगी, सीक्वेंस वाला बाद आई. सीक्वेंस ना, टाइमिंग कहां शो कर रहा है यहाँ पे? ए पहले आ गई, दो में से एक बाद में आई. सीक्वेंस ना, एक पहले आ गई थी, इसके बाद ये आई, तो क्या होगा? इट शोज सीक्वेंस. दैट्स व्हाई फिर आई चूज लेटर नॉट लेटर. एम आई क्लियर? लाइफ के कितने फेज होते हैं? 2 फेजेस. लाइफ हैज 2 फेजेस ना, स्टार्टिंग एंड एंड. अरे बर्थ एंड डेथ है ना. एग्जाम्पल दूं? लाइफ के 2 फेजेस ना, मैंने बोला the later or latter part of his life was devoted to God. हेलो, एक छोटा सा क्वेश्चन है. The later or latter part of his life was devoted to the God. उसके लाइफ का लेटर पार्ट या लेटर पार्ट? बाद वाला पार्ट, कॉल वाला पार्ट, बाद टाइमिंग वाला पार्ट, या उसके सीक्वेंस वाला पार्ट? सीक्वेंस वाला ना. अरे लाइफ का एक फर्स्ट फेज यंग, सेकंड फेज ओल्ड. तो लाइफ के सेकंड पार्ट, सेकंड फेज ना, सेकंड फेज, इसके बाद वाला सीक्वेंस शो कर रहा है. दैट्स व्हाई it will be later not later. Clear? This is the actual basic difference and this is the actual very topic of yours. Confusing एडजेक्टिव्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बट सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है. ये मेन थे, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इनको पढ़ लो. और भी कुछ एक्स्ट्रा 2 पॉइंट्स हैं, उनको मैं लिखवा दूंगा. Rest will be next. Enjoy yourself. बाकी का टाइम do whatever you want to do, but don't trouble your माता पिता and भारत माता की जय. Good night.